Hello guys, how are you? सब लोग कैसे हैं? We are back again with another live session. जैसे काफ़ी दिनों से we have planned and लोग आ रहे हैं. राहुल दुबे जी, ऐसे with okay, 14 people are here. Okay, guys, सब लोग आप कैसे हो? प्लीज़ मेंशन आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो रहे हो सो दैट वी नो अबाउट योर आवर ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से है. आर्मी लवर, परमजीत मौर्य, करण योगा, राहुल दुबे. ओके, सो आई विल ऐड कुलदीप आर्य सर जी जिनके साथ आज हम ये वाला सेशन लेने वाला है. माई वॉइस इज क्लियर राइट? अरुण फ्रॉम रोहतक हरियाणा. ओके, हरियाणा से हैं. हावर भैया, आई एम गुड. योगेंद्र, अभिरथी, हाय. ओके, बाकी लोग भी बताइए आप सब लोग कहाँ कहाँ से हैं. एक हरियाणा से बंदे आए हैं और बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ से हैं. आकाश योग, मौर्यन नंदल, हाय मौर्यन, कैसे हो भाई? हाय गर्वित योग. सर, सर इज अनेबल टू ज्वाइन. मैं दोबारा से इनवाइट करता हूँ सबको. हेलो साजम मोहोदी, आकाश योगा, हेलो. कुलदीप सर, अगर आप हैं तो कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट अगेन? या आई एक्सेप्ट. हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड. बी और फिट, आई एम गुड. ओके, हाय सर, हाउ आर यू? Hi, Shivang. I'm good. Am I audible? Yes sir, you are audible. My voice is also clear, right? Yeah, it's clear. It's clear. Yeah. Okay. So we are very happy, sir, to have you here finally after such a long time and such a long journey. So काफी लोग It's सारे good to be here. जोड़ हुए हैं. Yeah. जी सर, जी सर. 30 people are here and I guess sir, I think we should start now. Yeah, we can go ahead. Yeah. Okay, sir. So hi everyone. This is Shivang, and today I'll be hosting this session conducted by Contour Yoga, which is managed by Shivamraj. And today we have the honor of having Kuldeep sir with us. He's currently in Singapore. Am I right, sir? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Sorry. Yeah. Yeah. So, sir once came to DSEV for a visit, and I guess our HOD sir told told sir to have a session with us, and it was amazing. It was unbelievable. And from that point, I have known a glimpse about Kuldeep sir. And today we are going to know more about him and learn from him. And I'll request the sir to share his valuable knowledge with us. So, sir, again, a very warm welcome to you. Thank you. Thank you. Okay, sir. So, please tell us about your journey into yoga, how you came in this field, and what has your experience been so far? All right. So, before we begin, I will keep it very short and crisp because we know that we have a time limitation. So I'll try to keep things short and very crisp, whatever you ask so far. Okay. So let's begin with the like my journey was it's kind of a surprise for me and for everyone who is around me or who have known me from a very long period of time. So I started.
I mean, as a kid, you don't know, right, that what you are going to practice or what you're gonna do. But my dad brought me a book of yoga asana, and when you are like 3, 4 years old, you don't know exactly what you're doing. But just for fun, I used to do wheel posture by myself as a Okay. kid. And since then, they know that I'm interested in this kind of acrobatic moves. So he got me a book when I was like 5, 6 years old. And since then, I started doing two asanas, which is headstand and wheel. So those are my two very frequent asanas from the early childhood. And Okay. like when, especially in India, when you go to the education system, you really Hmm. don't have any direction that what you want to become later on. So Hmm. I started my study just like other people, continuing my study. Like at the beginning, I wanted to become IIT engineer. Uh, and Okay. secondary, when I got some more knowledge, I was like, okay, I want to become aeronautical engineer. But the journey was keep on fluctuating. But one thing was common is that I was constantly doing some technical work. Like I have some interest in like computers and all. So after 12th, I decided to do engineering. So I'm from MP basically. So in MP, we have to give the exam called MPPET for engineering test. It's called So Pre-Engineering Test. where in MP? It's Chinwada. Chinwada is a border Chinwada. of, Okay. yeah, it's a border of Yeah, MP I'm and from Gwalior, sir. Maharashtra. Okay, okay, yeah. Yes, sir. Okay, good to know. So basically what happened is like I even joined the engineering for 1 year in RGPV. And Rajiv after 1 year, Gandhi. yeah, UIT University. Yes, sir. So I was like uh, doing a normal student's job there, going to the college regularly. And then I found that it is not something that I want to continue. So I prepared myself for Triple E, IEEE, and I got chance to do in NIT Hamirpur. But it's all like fluctuating things. My sister was studying in DSVV that time. And she was like, why don't you come to the university? We have a new course that started. It's an animation course. So I was like, okay, I can go ahead because it's a technical thing and I have some interest in photography and computer. So I went there. I studied 2 years for animation. And that was my first like professional course after 12th. And even I started doing job in Chennai. So I was there for 2.5 years in a film production. So I worked more than 200 movies. Another thing was common was like when I was in DSVV and animation, I saw many yoga student, they were practicing yoga. So I had that interest, since childhood. So I was like, okay, if they are practicing, I can also join with them. So I was the student of animation, but I used to practice with the yoga, masters of yoga student that time. So I did even performance in Chandigarh one time with the university team when I was in animation. Oh, And nice. yeah, so basically in 2011, I was in Chennai and then I was working in film production. So if you know, like the film production job is not that easy. The working hours are quite tight. Like you start early morning, you finish, the deadlines are like very, very tight. So I was working almost like 18 hours a day. Yeah. 18 ज़्यादा नहीं हो गया sir? 18 18. hours. 18, it's too much, but that was the like limitation, and sometimes you have a need. Like I even remember there was a movie, South like Telugu movie, Badshah, Junior NTR's movie. So there was a deadline for that movie, and I was within office for 7 days constantly. No time to leave because you Yeah. have to finish the shot. So that was the time, and then I even switched in between 2, 3 companies there. So one day when I was working, suddenly it came in my mind that I'm doing a good job, I'm getting good salary, but I'm not paying back to the society. And suddenly Hmm. it came to in my mind that like, okay, what else I can do is like I have a good interest in doing yoga, so maybe it's a good idea to go back to the university and continue the study, so that I will be able to share with the society. So it was an overnight decision for me. When I told my family that I'm gonna change my field, so they were like, "Okay, you gonna spoil your life now because uh, getting a good job in film production where you have a chance to grow.
All of my friends currently they are working overseas in film production. So I choose to leave that time. So my family was like, okay, it's gonna be different, but you go ahead. So I decided I left overseas and I left the work there. And one of my other friend, he was in Mumbai, so we both decided to go back to the DSVV and did the master degree. Okay. So that was the beginning of my study. So we did the master degree, and after the master degree, like before finishing our master degree, my MSc, there was a company from Mumbai called Choice International. They came to the university for interview. They wanted to start a business in Mumbai, just like if you have heard about Sarva Yoga, right? Yes, sir. Sarva. So Sarva is a very well-known chain right now, and there is another one is called Cult Fit, right? Yes, sir. Yes, sir. Cult. So they are very popular right now, but before they started, uh, the company who hired us, they had this plan. They wanted to start their own yoga, like a studio in different cities. So they hired three person from DSV, and I was one of them. So I went to Mumbai, and they hired as a business manager. Hmm. So my very first job was as a business manager, and then I started working there. And if you go to the corporate, it's more like a white collar job. You have to go in a formal dresses, boots, and all. You have to plan everything, 9 to 6 job. So Hmm. I was enjoying it because it was a lot to learn from there because they spend a lot of resources in us to train. I got one of the best understanding about soft skills in that company. They taught us. They even hired a professional person to taught us. So I learned a lot from there. And then after 6 months, I thought maybe I can continue, but it is not something which is satisfying me. I can earn more, but Okay. it's not satisfying me. So I decided to leave, and one of the teacher from university, Dr. Kamakhya Kumar, he suggested me to go to Uttarkashi to teach the teachers training program. So I started teaching teachers training there, and then I was planning for the PhD that time. So I had a choice, like either I have to continue and wait for the PhD exam result, or I have to move overseas. So before Okay. moving to overseas, like I was looking for the job, and I mean it's too much. But what I did was like I sent more than 10,000 emails all over the world just to know where I can fit in. So I sent more than 10,000 emails, different studio, different parts of the world, and then I got maybe 500 responses, and then out of them maybe 100 of the people they interviewed me, and at the end I had 35 plus job offer all over the world to start my journey overseas. Yeah. And then Yeah. finally, I chose to leave India, and then I went to Vietnam with California Fitness. Many people ask me like, Okay. why did you wanted to do from California Fitness? Because that time it was one of the best company for Hmm. yoga industry. So I decided to go there, and then I worked there for 1 year, and then I felt like maybe this is not the correct platform for me. So I decided to leave, and then I supposed to go to Dubai, like, but one of my students, she was in Hong Kong, and she asked me to come to Hong Kong. She connected with me, my old employer. So I came to one of the studio in Hong Kong. I was working for that company for 2 years something, and then I moved to Pure. So far, it's been 6 years for me in Hong Kong. ओके सो जब से आप फिर हांगकांग गए तब से अभी तक आप हांगकांग ही हो हाँ, जब से मैं like since I came to Hong Kong, I'm still in Hong Kong. Oh, it must be a Yeah, long journey. So, sir, yeah, without wasting um, much time, let's just directly jump into the topic, the theme that we have sure, decided for today. Uh, sure. तो ऑडियंस सारी हमारी आज की इस बार हमने थीम रखी है स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर सक्सेस इन द योगा इंडस्ट्री प्रिपेयरिंग योर एंट्री इनटू द मार्केट तो बेसिकली योगा आज बहुत ही ज्यादा व्यापक हो गया बहुत ज्यादा फैल गया है बट स्टिल जो प्रोडक्शन होता जा रहा है योगा इंस्ट्रक्टर्स का इट्स नॉट मार्केट रेडी मतलब लोग बस कोर्स करते जा रहे हैं बट दे डू नॉट नो द मार्केट सो दिस सेशन इज बेसिकली अ गाइड फॉर यू टू सजेस्ट यू कि आप खुद को मार्केट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो लेट मी सर start the session by the first question. What key trends are currently shaping the yoga market, and how can one stay updated on these trends? Uh,
I think we need to understand in a bigger picture first that trend, when we say the word trend, it's all about the it's about something for short period of time, you know. uh, जब हम बोलते हैं कि I'll try to speak in bilingual so Yes, sir. everyone can understand. जब हम बात करते हैं योगा की तो एक एक चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि चलो अभी iOS 16 आया है तो अब इसके बाद में 17 आएगा, ठीक है, या फिर Windows 11 आया तो इसके बाद में 12 आएगा। लेकिन योगा में ये चीज Hmm. काम नहीं करती, या फिर ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये चीज काम नहीं करती। ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जितना अपडेट होना है उतना आपको पीछे जाना पड़ेगा। Hmm. जो हमारा ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो जितनी आप जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास वेदास हैं, पुराण है ना, उपनिषद हैं, आप जितना इनको पढ़ोगे Hmm. उनसे आपको जो ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं हर जगह एप्लीकेबल है। Hmm. और एक बात कहते हैं हमेशा कि जो नॉलेज है वो पावर होती है, नॉलेज इज द पावर। if Hmm. you don't have the knowledge you can really not survive in the world because everything is replaceable. The life Hmm. is keep on changing, people are changing, the business is changing, even like the Hmm. policies are changing everywhere, but the one thing which can help you sustain is the knowledge. तो जब हम Hmm. ट्रेंड की बात करते हैं तो there are many trends available right now. For example, if you may have heard about these like there are yoga lamba, they are using the stick for the yoga. There was some Yes, aerial sir. yoga, right, chair yoga. Unfortunately. And I Beer mean yoga, goat yoga. yeah, Yes, yes, sir. yeah, Many stupid even friends. even there are so many negative ways of like engaging with the yogic market. I mean, somehow we have to use this word that right now yoga is a market because it's a big billion industry, very big billion industry, which is actually, if we see in a bigger picture, who are getting benefit from it, right? This is the biggest One question comment here. said moe moe. Rahul. Yeah. Yes, sir, continue. So we need to understand that when it comes to the trend might not be sustainable, right? There are many trends came in. People are starting with different ideas. Ideas are very welcomed, you know. Hmm. Creativity we must welcome, but we need to understand that what is the need of that trend. If we say goat Hmm. yoga, beer yoga, what's the need of this? We need to understand that in a bigger picture that we should not be hypocritic person. One side there Hmm. are many people, they are eating goats, and those are maybe those are the same people, they will be doing the goat yoga. So actually, which Hmm. kind of emotion you're following? Are you killing them or are you pampering them? We need to understand that, right? Okay, it's very extreme, but if we go to a smaller way, like for example, chair yoga or block yoga or uh, maybe a different kind of props now, right? So Hmm. when Hmm. it comes to yoga philosophy, according to yoga philosophy, we already know that desh, kal or paristhiti Hmm. depends upon Hmm. Yes. time, situation, and place. Everything is changeable. So if there is a need of certain things, for example, if you go to the West, people have a bigger structure. Hmm. Their body type is more tight, so Hmm. they have more muscular body type. So they have difficulty in bending. So basically, when they perform the asanas, it's very difficult for them to really achieve the final posture to feel good. So if you introduce some props like blocks, bolster, or some other things, it will be helpful for them. Straps, right? But if you are introducing something which is, I mean, I would say which is not appropriate there. So so the trend, we need to understand that yes, you can follow the trend, you can introduce new things, but Hmm. if it's not giving you the benefit, it's not going to be sustainable. And when it's not Hmm. sustainable, the trend is very short period of time. So it might attract True. some of your clients, but we need to understand another side of this is that trend is there, but what are the consequences of this, Yes, sir. right? Okay. So there are many different like trends are there. Even they have a certification course. Hmm. So people are even providing certification course. Like for example, if you do wheel yoga, you have a certification on wheel, and then you can teach the wheel Hmm. yoga all over the world. So Hmm. I mean, you can always think about the benefit and need, and accordingly you can follow the trends. Okay, sir. And so, next question. What about how to prepare oneself
for the market while they are in their education, while they are pursuing their studies. जब लोग अपनी studies continue कर रहे हैं, whether it be masters, graduation, or Hmm. diploma for that matter, how do one prepare oneself for that market? I think the biggest thing is that the vision, you know. Uh, I remember when I was doing my master's, there was different master's course, but in the same batch, masters of art, master of science, master of holistics, health, master of human consciousness. So overall, we have almost like 100 plus student in masters only, right? So Hmm. what happens is like when you are in education, you are more aligned and inclined towards the subject you are studying. And that's where we need some exposure and vision. So if you have a vision, for example, to be honest, this is the reality that when we study, we don't really have that exposure until unless someone is guiding you as a mentor, right? Hmm. So it's very important to connect ourselves with outer world. Like I told you that I sent more than 10,000 emails. So some of the Yes. emails I got it because of my connections. So what you can do Hmm. is first thing is decide your vision. What is your vision of life? Do you want to become a yoga Hmm. teacher? Do you want to become a yoga instructor? Or you want to become a professor in university? Or you want to become a healer? Or you want to just open your own business? So first thing is you need to decide what you want to do. Although you can always switch back and forth because as long as you have the knowledge, you can switch back, no problem. So first thing is the vision, and according to the vision, you can always connect same kind of people. For example, if I want to become a professor in university, it's better for me to connect with different teachers in the different university. Hmm. And similarly, when if you want to open your own setup, own business, it's better for you to connect with all the people, all different business in the yoga field. You can connect, you can get the ideas, you can understand about retreat, you can understand about workshops or trainings, Hmm. and then you can start your own setup. So eligibility, I would say that whatever you want to do, prepare yourself accordingly. Sometimes your Yes, sir. eligibility is not aligned with the thing you are doing, so it will be very difficult. Being a yoga teacher and being a businessman is a two different thing. Okay. तो सर जैसे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, what would be like better to set up one's own business first see या फिर to join a company and learn? अगेन मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे आपका रिसोर्सेज बहुत मायने रखते हैं। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको सीखने को बहुत मिलता है ना? लेकिन ये Hmm. बात भी है कि आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया है आपने, तो जब आप एम्प्लॉय बन के ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जब आप सीखने की बात करते हो तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस कभी बिना रिस्क के होता नहीं है, और रिस्क के पीछे आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। So as long as you have resources and you are not worried about what risk you are about to face in future, because business is all about risk. Sometimes it's good, sometimes it's bad, sometimes you need a strategy, sometimes you need a good strong manpower, and sometimes client base also, right? तो अगर Hmm. आप जैसे ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हो या फिर डिप्लोमा कोर्स में हो, किसी भी कोर्स में हो, तो एक्सपीरियंस लेना ऑलवेज गुड। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना सेटअप किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई भी की है और उन्होंने जाके दूसरे कंट्री में काम भी किया है। तो Hmm. सीखना कोई बुरी बात नहीं है, आप एक सिस्टम को समझो पहले। समवन टोल्ड Hmm. मी इन यूनिवर्सिटी बिफोर कि अगर आपको सिस्टम चेंज करना है तो पहले आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। और सिस्टम चेंज की बात Hmm. नहीं है यहाँ पे, आप एक बार सिस्टम में जब जाते तो आपको पूरा वर्कफ्लो समझ में आता है। And when you understand the workflow, you can start your own, you can plan your own, you can modify, you can improve accordingly. Okay sir. So right now sir आप as मतलब आपकी खुद की कंपनी है वहां पर या फिर आप as एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो नहीं, हांगकांग मैं में? अभी प्योर योगा के लिए काम कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉय, अच्छा बिकॉज सर. मेरा पीएचडी भी साथ में चल रहा है, तो पढ़ाई के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग वो काफी है। अच्छा और सर आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं अभी? मेरा पीएचडी अभी कोटद्वार यूनिवर्सिटी से है। मैंने पहले डीएसपी भी ट्राई किया था लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, तो कोटद्वार हम्म. यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अच्छा सर. ओके. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What marketing strategies have proven effective for yoga businesses, especially for those just entering the market?
कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इफेक्टिव प्रूव हुई हैं योगा बिजनेस के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट मार्केट फील्ड एंटर किया है? अगेन फिर वही वाली बात है, देखो कि जैसे अगर किसी को भी अगर मार्केट में एंटर करना है तो हम्म। पहले वो उस मार्केट का प्लेटफॉर्म हमें समझना पड़ेगा। चाहे वो आप कहीं भी करो, जैसे आप इंडिया की बात करो या बिगेस्ट सिटीज की बात करो या फिर ओवरसीज की बात करो, आपको पहले मार्केट समझना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह की मार्केट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस अलग अलग होती है, उनकी नीड्स अलग हम्म। होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे, जो मेरा एक्सपीरियंस उस हिसाब से, जैसे आप गुजरात चले जाइए, ठीक है, गुजरात में अगर आप हम्म। थेरेपिस्ट हैं तो आपका बिजनेस सक्सेस है, क्योंकि वहाँ की क्लाइंट्स जो है वो उनको जी थेरेपी जी। चाहिए। ठीक है। अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करें तो लोगों को मोर फिटनेस चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम्म। जैसे अगर बात करते हैं कि अब जैसे साउथ में चले जाइए, केरला साइड में चले जाइए, तो वहाँ पे लोगों को और ये पंचकर्मा और आयुर्वेदा में चाहिए। तो पहले आप हम्म। अपना जो मार्केट है उसको समझने की कोशिश करिए कि वहाँ की नीड क्या है। उसके बाद में फिर हम्म। वहाँ की कनेक्टिविटी, अगर रिसोर्सेज, एज आई सेड कि रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं हम्म। रहेगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई वुड से कि आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं कि आप चाहे डिप्लोमा करिए या फिर मास्टर्स करिए या फिर ग्रेजुएशन करिए, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, है ना। और जी। हम, ये नहीं हो सकता कि हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएं। तो हम्म। हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल एज आई सेड थेरेपी, तो आप थ्योरी, अपनी थेरेपी को स्ट्रॉन्ग करिए और थेरेपी के मार्केट पे जाइए। तो जैसे अगर आपको नया मार्केट भी स्टार्ट करना है तो प्लेटफॉर्म पहले जरूरी है। आ, हम्म। और प्लेटफॉर्म के बाद में, Yes, sir. हाँ, तो कंटिन्यू सर। These are all the way stuck on मोए मोए। आप कंटिन्यू करिए सर। और प्लेटफॉर्म के बाद में फिर उसके बाद में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप मतलब एक्शन में लाइए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि शिवम की बात करूं, शिवम अपने हम्म। आसनास में अच्छा है, ठीक है, तो वो जहां भी अपने आसनास परफॉर्म करेगा उसका वहां पे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके आसनास अच्छे हैं, या फिर मैं बोलूं कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी थेरेपी अच्छी है और उसको आपने आसना का मार्केट दे दिया, इट्स नॉट गोना वर्क, हम्म। है ना। जिसकी थेरेपी डेफिनेटली सर। अच्छी है तो आपको अपना मार्केट समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन करिए। ओके सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, how do you recommend pricing yoga services competitively while ensuring profitability? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगेन समहाउ वी आर Yes, गोइंग sir. टू द मार्केट ओनली, राइट। अब Yes, sir. जैसे एक बात करते हैं कि जैसे इंडिया में योगा फ्री है कि नहीं। आप टीवी ऑन करिए, संस्कार टीवी और जो भी चैनल, आपको योगा फ्री में मिल जाएगा वहां पे। कह लेते हैं सर, हाँ ठीक है, हाँ फ्री है ठीक वैसे। है। मतलब अगर आपने एक बिल्कुल। बार यूट्यूब पे भी जाके टाइप किया कि हाउ टू डू बैक बेन, और या फिर आपने ये टाइप कर दिया कि योगा फॉर एंजाइटी, योगा फॉर डायबिटीज, आपको योगा फ्री है वहां पे, है ना। तो बहुत सारे लोग हम्म। क्या करते हैं कि जो खासकर जो ऐसे लोग हैं जो या तो रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, या फिर जो मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो प्रोफेशनल्स के गाइडेंस में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, वो लोग ये चीज करते हैं। तो अगर जैसे हम बात करते हैं बिजनेस की, तो जो प्राइसिंग आपकी एक सिटी में होती है वो आपकी एक विलेज में नहीं होगी, या फिर वो एक ओवरसीज जगह में नहीं होगी। जैसे जी। मैं शेयर करता हूँ कि हांगकांग में जो योगा का जो पर आवर का जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इंडियन में सर, इंडियन रुपीज में सर कितना होगा लगभग फॉर अ सेशन? इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूँ तो लोग घबरा जाए, लेकिन यहाँ पे लोग 2,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं एक सेशन का। नाइस। एक सेशन नाइस। का। वो लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप रिजल्ट कितना दे पाते हैं, और उसके बाद में आपके क्लाइंट्स कैसे हैं, है ना। अगर हम्म। आपके क्लाइंट सेलिब्रिटीज हैं तो वो आपको 20,000 भी पे करेंगे। और जब क्लाइंट्स हम्म। की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी हम्म। है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर जैसे जनरल लोगों की बात की जाए तो मिनिमम यहाँ पे 2,000 रुपए ये
मान के चलो कम से कम। यहाँ शिवम बोल रहे हैं यहाँ तो 2K मंथली में करवाते हैं। यही एक That is also हम true. ये हमको मार्केट समझना पड़ेगा ना कि एक एक और अगर आपने फोटो देखी होगी कभी, एक लैम्बोर्गिनी की फोटो है जिसमें डस्ट पड़ी हुई हम्म, है ना। एक फोटो मतलब ये एक वायरल फोटो है ये, इसका मतलब ये है कि जब जब तक आपको करेक्ट प्लेटफॉर्म ना मिले ना, आपकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको अपना सही प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लेटफॉर्म ढूंढिए। हाँ, कई बार ये वो चीज हम्म, सिचुएशन होती है, जैसे फैमिली सिचुएशन है, आप एजुकेशन हाथ में चल रहा है ना। तो आपको अपने क्लाइंट्स वैसे डेवलप करने पड़ेंगे। हम्म, okay, sir. Okay. Next, talking about sir, certification and accreditations. Talking about the global market, are there specific certificates or accreditations that are highly valued in the yoga industry? And also, sir, show some light on Yoga Lines and the courses conducted by Yoga Lines, whether they are अ, good or not, and whether one should do them or not. अ, इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे शायद शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी भाषा में जरूर बोलूंगा, है ना। क्योंकि जी सर, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें समझना पड़ेगा कि योग जो है वो भारत से आया है, ठीक है। तो अगर आप भारत से योग सीख के जा रहे हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैंने मास्टर डिग्री पूरी हो गई मेरी, उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो किसी का ईमेल आया मेरे पास डायरेक्टली, व्हाट अबाउट योर 200 आवर सर्टिफिकेशन। तो हम्म, ये बहुत बड़ा मतलब ऐसी रिडिकुलस सिचुएशन होती है कि जब आप मास्टर डिग्री करके आते हो, लोग आपसे पूछते हैं आपको 200 घंटे का सर्टिफिकेट है कि नहीं, है ना। तो एक ये yes, तो खैर फिर भी ठीक है। एक ऐसा इंसान जो पीएचडी कर रहा हो, जिसने 5 साल टीचिंग की हो भारत में, इंडिया में यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में से कोई पूछे कि आपके पास 200 घंटे का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो ये बहुत मतलब फनी सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि अगर आपका आपका ध्यान बाहर जाने का है, अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट बाहर है, ओवरसीज है, इंडिया के बाहर है, तो हम्म, अनफॉर्चुनेटली योगा लाइन सर्टिफिकेशन को ही लोग आगे मानते हैं। और इस चीज को फेस करना सबको पड़ता है। इवन मेरे साथ ये चीज हुई है। इवन ये होता है कि बाहर का मार्केट जो है वो एजुकेशन बेस्ड नहीं है, वो आवर बेस्ड है। अगर कोई आपको बोले कि अच्छा, जैसे आपको प्रॉपर एजुकेशन देनी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलते हैं कि हमको तो सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेशन जो मिलेगा वो आपको ओवरऑल, क्योंकि हुआ क्या ना कि कई बार अलग अलग लोग आते हैं और उसका एडवांटेज ले लेते हैं। ये वही चीज हो गई कि जो एक विदेशी कंपनी आई, उसने अपना एक कंपनी खोला जहाँ पे उनका कोई उनकी तरफ से कोई मदद नहीं होती है, ना शिक्षक को मदद होती है, ना ही विद्यार्थी को हम्म, मदद होती है। उनका काम केवल इतना है कि एक उन्होंने जगह दे दी जहाँ पे आपका नाम उनके उनके वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। उसका आपको पैसा देना है, हर साल देना है पैसे, आपके स्टूडेंट को भी देना। तो बेसिकली वो बैठे बैठे उसमें आपका कुछ एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। तो मैं उसके मतलब उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अगर आपके स्टूडेंट ओवरसीज हैं तो उन्हें वो सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको उसके थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो मैं उसको so इनकरेज तो नहीं करता हूँ, unfortunate, लेकिन हाँ, मैं जी, उसको इनकरेज तो नहीं करता हूँ। इवन जैसे मैंने जो ट्रेनिंग की थी, मैंने सबको पहले से बोल के रखा था कि अगर आपको केवल सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी और टीचर के पास चले जाओ। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको क्योंकि मैं भारत से आ रहा हूँ, मैंने भारत के योग को समझा है। योगा और योग में बहुत फर्क है अभी। अ, तो अगर आपको योग समझना है तो आप मेरे साथ इस कोर्स को ज्वाइन करिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे टीचर हैं, आप उनके पास जाइए और आपको वो बहुत अच्छे से समझा देंगे, और सर्टिफिकेट भी बहुत प्यार से दे देंगे बिना कोई परेशानी के। जी तो सर, मैं फिर से यही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर जैसे अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए। दूसरी बात है कि अगर आपको बाहर निकलना है, तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप 1-2 महीने और इंडिया में दीजिए निकलने से पहले, और उसको भी पूरा कर लीजिए। क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि आपके प्रोफाइल में 500 घंटे या फिर 1000 घंटे होने चाहिए, तभी आप फिर ट्रेनिंग कर सकते हैं,
है ना। और कई बार Hmm. लक भी ऐसे काम करता है, मुझे 6 साल लग गए पहली ट्रेनिंग करने में। Yes, sir. Can you मतलब elaborate जब on मैं that? आई मीन जब मैं हांगकांग आया था तो मैंने डिमांड की कि मुझे ट्रेनिंग करानी है, Hmm. क्योंकि वर्कशॉप ऐसी होती है कि वर्कशॉप छोटी होती है, 1-2 दिन में आपने करा दिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि ट्रेंड अलग है, स्टाइल अलग है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसना बेस्ड एजुकेशन दे रहे हो उनको। उसके बाद में Hmm. जब आसना बेस्ड एजुकेशन आपने दे दिया तो उनको फिलॉसफी समझने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे अगर आपने Hmm. बोला कि चलो आपको खाली पेट आसना करने हैं, ठीक है, लोग खाना खा के आते हैं, कॉफी लेके आते हैं क्लास में, डिटॉक्स की क्लास होती है, ट्विस्टिंग की क्लास है, और वो कॉफी लेके क्लास में आते हैं, ठीक है, तो उनको नॉलेज नहीं है ना, उनके लिए योगा फिटनेस ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो सब देने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, और वो मुझे 6 साल लग गया, क्योंकि आप जब कंपनी के साथ काम करते हैं तो कंपनी भी आपको अपने तरीके से मोल्ड करती है। तो 6 साल बाद Hmm. मुझे ट्रेनिंग मिली, जो कि मैं रिसेंटली मैंने फिनिश किया है। ये उसी का है, ये प्रज्ञा ये ट्रेनिंग का ही है। अच्छा. By the way, ये sir, I briefly checked out your profile and job courses, your title रख देना sir. बहुत amazing titles. That Merudand and that Pragya, like all connected to the Sanskritam language and to the roots. It is very fantastic, sir. कहीं ना कहीं वी हैव अ Um, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू कम फ्रॉम इंडिया यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू you have a responsibility to keep that theme alive and keep that respect alive, क्योंकि बाहर योग को योगा भी बना दिया गया है, और कोई नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है, तो हमें थोड़ी सी mm, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत mm, होती है, ऐसा नहीं कि आप सीधे आ जाते हो। मेरे साथ भी कुछ 4-6 लोगों की टीम है जो मेरा सपोर्ट करती है, वो पूरा प्लान करते हैं हम लोग बैठ के कि नाम क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, थीम क्या होगी, कैसे उसका उसके कंटेंट क्या होंगे, तो इसमें टाइम लगता है या जी sir. And sir, what about the scene in Hong Kong? Hong Kong में sir कैसा चल रहा है? Like yoga market, how are the people there? Like how's your experience in Hong Kong? 6 साल से हो तो sir that's of course अच्छा ही होगा, but yeah, please shed some light on that. I mean, many people ask me like why I'm working in Hong Kong. Although I have a chance to travel overseas and I can work any other country. लेकिन हांगकांग की बात अच्छी ये है कि जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि यहाँ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी Hmm. है यहाँ पे, यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 8 मिलियन है, 8-9 मिलियन समथिंग। उसमें से दुनिया के हर जगह के लोग यहाँ पर हैं। Hmm. हर जगह के लोग आपको मिलेंगे, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नाइजीरियन है, हर जगह के लोग हैं, जर्मन्स हैं, चाइनीज हैं। तो पूरी दुनिया के लोग जब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और जब आपको अपनी शेयरिंग उनको लानी होती है, तो वहां पे हमारा रियल चैलेंज होता है कि आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल कैसे है। Hmm. कि जैसे मुझे एक हठा की क्लास लेनी है, हठ योग की क्लास लेनी है, विन्यासा की क्लास लेनी है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग बॉडी टाइप के लिए एक ही क्लास में कैसे आप उसके अप्लाई करेंगे। तो मुझे चैलेंज पसंद है पर्सनली। तो मुझे हांगकांग में काम करना अच्छा लगता है। बाकी एक रीज़न ये भी था कि मैंने वियतनाम इसलिए छोड़ा था, क्योंकि जब मुझे लगा, जब आज से 8-7 साल पुरानी बात है, जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ सबसे बड़ा इशू है लैंग्वेज का। Hmm. वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, आपको वियतनामी सीखनी पड़ेगी। और अब तो खैर शायद ठीक हो गया है, बट उस टाइम में ऐसा था कि अगर आपको योगा सिखाना है तो आपको उनकी लैंग्वेज ही सीखना पड़ेगा। और ठीक है, आप आसनम सिखा सकते हो, लेकिन जब आपको फिलोसफी सिखानी है या फिर आपको इंडियन कल्चर Hmm. के बारे में बात करनी है तो वो लोग उसको समझ नहीं सकते। या फिर आप वो उन Hmm. शब्दों को कैसे अडॉप्ट करोगे, फिलोसफी, योगा, संस्कृत के शब्दों को वियतनामी में कैसे ट्रांसलेट करोगे, वो चीज़ नहीं है। तो मुझे लगा You कि can't. मेरे लिए वो करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था Hmm. कि मुझे दुबई आना है, और अनफॉर्चुनेटली मैं हांगकांग आया और तब से फिर यहाँ पे चल ही रहा है। Okay. Okay, sir. और सर वेदर वगैरह कैसा रहता है हांगकांग का? मतलब कैसा है? वेदर एक और मिस्टेक, मतलब इससे भी एक रिलेटेड थोड़ी स्टोरी है कि जब मैं हांगकांग पहली बार आया था उस टाइम में मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। मतलब होता है, सबके फेज अलग होते हैं। तो वो Hmm. टाइम ऐसा था कि 2018 की बात है। फरवरी में जब मैं आया था उस टाइम में यहाँ का टेम्परेचर था अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। और मुझे 4 डिग्री आइडिया नहीं था सेल्सियस. कि 4 डिग्री, हाँ। और ओके. वियतनाम वियतनाम साउथ वियतनाम मोस्टली हॉट है। होचिमिन में था मैं, हम्म. तो वहाँ पे वही टेम्परेचर अराउंड 30 समथिंग था। शिवम राज सिंह सेम आपके जैसी गर्मी चल रही है मेरी तो.
वो भी सर, हाँ आपको भी पता ही होगा, शिवम शिवम भी पहले वियतनाम में गया हाँ। था, देन हम्म वही, हम्म। उसे भी वही इश्यूज फेस करने पड़े जो आपको करने पड़े थे। वो चीज होती है। तो जब मैं यहाँ पे आया था मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ का जो जो वेदर है वो ह्यूमिड है। और मैंने ज़्यादा ध्यान हम्म दिया नहीं, मैंने अपनी जो प्रैक्टिसेस को वेरी स्ट्रांग रखा। और एक दिन एक शूट था, मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, कुछ एडवांस पोस्चर कर डाले नी को एंगेज करके, और एक ही दिन में मेरे दोनों नी इंजर्ड हो गए थे। हाँ, क्योंकि हाँ, जब ह्यूमिड होता है तो आपकी बॉडी आपको वैसे सपोर्ट नहीं करती है। तो हम्म ये सभी लोगों के लिए सजेशन है कि जब आपकी आसना प्रैक्टिस होती है तो आप वेदर को बहुत अच्छे से समझें। दूसरा ये कि हमारे एक और प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग बीइंग एन इंडियन कभी हम लोग सप्लीमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। हमारे लिए दाल रोटी ही सही है, हम इसी पे ध्यान देते हैं कि हमारा हम्म खाना हो जाए काफी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो न्यूट्रिशंस हैं एक योगा प्रैक्टिशनर के लिए, वो उसी तरीके से जरूरी है जैसे एक बॉडी बिल्डर उसके सप्लीमेंट्स को लेता है ना। हम्म अपने जॉइंट्स का, मसल का, स्लीप का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो सभी के लिए सजेशन है जो भी अभी आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे ही आप जगह चेंज करते हैं तो वहाँ का वेदर आपको बहुत इफेक्ट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके। The next question is by Garvit from Asyasa. He's asking, हम्म। what could be the best ways to improve teaching skills? टीचिंग स्किल्स, देखिए सबसे, shall I answer in English? I think it will be easier for him. Yeah. So I think Sir, English is yeah, the very first thing is that you can only share what you already know or what you have experienced. Otherwise you have to yes. pretend or you have to just act, which I really don't support things. Even all of my students, I strongly told them that you must practice whatever you want to share at least 10 times by yourself. You experience it and share your experience. तो अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना है मार्केट के लिए, अपनी टीचिंग स्किल्स को, तो पहली चीज तो है कि लैंग्वेज आपकी अच्छी करिए। चाहे वो आपको हिंदी में भी क्यों अगर सिखाना ना हो, यू नीड टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है, ठीक है। आपके Hmm. आंसर्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए। आपका आपका जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कब आपकी वॉइस हायर होनी चाहिए, कब आपकी वॉइस सॉफ्ट होनी चाहिए। आप योग निद्रा में लाउड नहीं हो सकते, ठीक है। और हठ की क्लास में आप सॉफ्ट नहीं हो सकते, आपको वो चीज मैनेज करनी पड़ेगी। आपके सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होने चाहिए। जब आप क्लास ले रहे हो तो आपका हैंड जेस्चर स्ट्रांग होने चाहिए, आपने बोला लेफ्ट राइट, आप इससे ही पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपकी वॉइस में वो डेप्थ होनी चाहिए कि आपका एक वर्ड पूरी क्लास को कंट्रोल कर सके। Hmm. और उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि आपके चैलेंजेस बहुत आते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्लास, डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट, आपके पास चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को कामली आपको हैंडल करना है। सिचुएशन बेस्ड चीजें होती हैं, मार्केट को समझने की बात होती है। उसके बाद में आप मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई वुड से स्टार्टिंग में आपको अपनी एलिजिबिलिटी पे ध्यान करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, अपने बून एंड बेन को समझिए कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमारे अंदर क्या अच्छा है। जो अच्छा है उसको मेंटेन करिए और जो वीक है उस पर काम करना चालू करिए। Okay, sir. Okay. अच्छा, मैं ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ऑडियंस, कैन यू गेस सर की एज कितनी होगी? गाइस, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो कैन यू गेस एनीवन सर की एज कितनी होगी? 410, ये क्या, ये पाई। गर्वित योग 25, ओके। अपूर्व सोनी 29, ठीक है। और बताइए। जोन रोड्रिगज 25, ओके, 25 अगेन 25। सबसे हाईएस्ट 32। आकांक्षा मैम 33, ओके। अभी हाईएस्ट मैम का 24। ओके, आई गेस इतना है ना। आई गेस सर यू शुड आंसर। सर आपकी एज कितनी है? ओके, 26 जाएगा। हाँ, बताइए सर। यहाँ पे आंसर है प्रियंका, ये मेरे साथ में पड़ी हुई है, ने आंसर दे दिया यहाँ पे। प्रियंका राठौड़। प्रियंका राठौड़, आई कैंट फाइंड हर। 30 साल है अभी मेरी उम्र। शिवम राजे सिंह 18।
या तो सर को देख के मतलब जानने लगता है कि सर कितने यंग हैं। एंड 30 का तो मैंने ऐसे 30 का राउंड सुना था, आई वाज वेरी शॉक कि सर इतने मतलब मैच्योर एंड एजेड हैं, बट लगते नहीं है, बिल्कुल नहीं लगते। ही इज यंग, तो ही इज लाइक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ योगी जिसकी एज कम हो जाती है। अगेन हम फिर फिलोसफी पे जाते हैं। ये चीज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को भी बताया है और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहूंगा कि अगर हम हम्म। भगवत गीता को फॉलो करें तो हम स्थित प्रज्ञ नहीं हैं। हम अपने आप को योगी नहीं कह सकते। हमारे साथ थोड़ी सिचुएशन होती है और हम फ्लक्चुएट हो जाते हैं, तो हम अपने आप को योगा प्रैक्टिशनर कहें, वो हमेशा अच्छा है। मैं सभी को बोलता हूँ योगी वो हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, और हम तो वहां पे है नहीं अभी। थोड़ा सा कुछ हो जाता है, चाहे वर्क हो चाहे फैमिली हो। और Good with reason because he's not teaching beer yoga. That is also true. बट सर योगी के लक्षणों में से ये तो आप मानेंगे, योगी के लक्षणों में से ये वाला लक्षण तो आपके पास है। फिर हम उसको बोल सकते हैं हम हठ योगा प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि हठ योगा में हम बोलते हैं वपु कृषोत्तम वदने प्रसन्नता। वपु कृषोत्तम, आपकी या बॉडी अपने आप स्लिम हो जाती है, आपके चेहरे में थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, फेस आपकी आईज सॉफ्ट हो जाती हैं, जो हम जानते हैं हठ योग में क्या है। तो वो चीजें हमेशा आपको अलाइन करेगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस छूट गई, फिर आपका, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, सबसे पहले उनका पेट बाहर आता है और फिर क्या उनकी प्रैक्टिस धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वो दिस एक प्लेटफॉर्म पे हैपेंस। पहुंच गए, इतना इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना कि उनको पता है कि हमारे कुछ फॉलोअर्स स्टूडेंट हैं, वो जैसा हम बोलेंगे कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। तो बहुत से टीचर्स मैं जानता हूँ जिनको एक बार वो बाहर निकलते हैं थोड़ी लाइफ इजी हो जाती है। सबसे पहली चीज होती है उनका पेट और ये डबल चिन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक रिफ्लेक्शन हो, एज अ टीचर आप रिफ्लेक्शन हो, तो आपको वो मेंटेन करना जरूरी है। ओके। तो गाइस, ये वाले हमारे मेजर क्वेश्चन थे। आपको जो भी अभी लोग लाइव में ज्वाइन है, किसी को भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और तब तक सर आपको एनीथिंग वैल्यू रिलेटेड दैट यू वुड लाइक टू शेयर, प्लीज फील फ्री टू शेयर। आई मीन जैसे हम लोग आज बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप एजुकेशन में हैं या फिर अभी टीचिंग भी कर रहे हैं, तो हमेशा समझिए कि योग जो है वो एक डायरेक्शन का नहीं है। हमेशा योग को लिमिट मत करिए। योग ऐसा नहीं है कि आपको केवल योगा टीचर ही बनना है। आप अपना भी बिजनेस खोल सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर के हैं। बाहर के मतलब क्या है, हम्म। वो इस चीज को समझ चुके हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत पैसे हैं। तो उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब भारत से फिर बाहर से वो टीचर्स को हायर करते हैं, और अ, कुछ नहीं तो 30% ऑफ जो बेनिफिट होता है वो उनके पॉकेट में जाता है बिना कुछ किए। ठीक है। तो हम्म। अगर आपको सच में अगर बिजनेस फील्ड में जाना है, तो उस हिसाब से सोचिए कि आप मार्केट अपना वैसे क्रिएट करिए, या फिर मार्केट के हिसाब से अपने आप को डेवलप करिए। आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप सब्जेक्टिव टीचर हो सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब योग में इतनी सारी फील्ड है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। आप किसी एक को पकड़िए, उसको स्ट्रेंथ, मतलब उसको इतनी इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रांग कर लीजिए कि बस जहां भी जाओ आप, वो आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक चीज ही काफी है। ओके। ओके। ईशा फ्रॉम सर DSCV, our classmate, she's asking, supplements वाली आप बात कर रहे थे, तो what are the supplements that you were suggesting earlier? देखिए फिर दो तरीके हैं, या तो आप इसको मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग से समझिए, या फिर हमारी एंशियंट वे से समझिए, है ना। तो हम्म। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वात पित्त कफ की बात होती है। आप इसको बिल्कुल हम्म। मैनेज करिए, चाहे आप नीम लीजिए, चाहे अश्वगंधा लीजिए, चाहे आपको हम्म। शतावरी लेना हो, तो ये आयुर्वेदिक वे है। और जब हम मॉडर्न वे की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में, स्पेशली योगा प्रैक्टिशनर, हमारे साथ क्या होता है ना कि हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमको ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, और वो हैवी खाना हम्म। ना खाने के चक्कर में आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी सबसे पहले होती हम्म। है ना। और जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी और आपकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, तो वो आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, जॉइंट्स को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो आपको जिस भी वे से अंडरस्टैंड करना हो, मैग्नीशियम हो, आपका विटामिन हो, मिनरल्स हो, आपको सब मैनेज करके चलना है। और अगर ट्रेडिशनल वे की बात की जाए, तो योगा प्रैक्टिशनर के लिए अश्वगंधा बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल वे आजकल क्या हो गया कि योग प्रैक्टिशनर की जब बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट आसना। अगर आप बेंड कर सकते हम्म। हो, आप हैंड स्टैंड कर सकते हो, ये ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है ना।
जब आपको बूस्ट कर रहे हो अपने इम्यून सिस्टम को, अपने नर्वस सिस्टम को, उसको काम डाउन कैसे करोगे आप? तो उसके लिए हम्म, अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ नहीं ले सकते तो अश्वगंधा आपको लेना ही लेना है। और उसके ओके अलावा फिर आप डाइट मेंटेन करिए। डाइट आपकी पुअर नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी रहो दुनिया में, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ओके। अश्वगंधा सर एक शांति कुंज की, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट, राइट? आप कहीं से भी ले सकते हो। जैसे मैं अभी तो शांति कुंज में बहुत दिन से गया नहीं हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे वो अपना जो पतंजलि वाला अवेलेबल है, और कुछ ऐसे अलग अलग ब्रांड हैं। और अगर हो सके तो आप जैसे हर्बल वाला अगर अवेलेबल करा सकते हैं तो वो भी बढ़िया है। अच्छा सर, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हांगकांग में भी मिलते हैं? मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है। हांगकांग में ऑलमोस्ट 8% ऑफ पॉपुलेशन इज इंडियन। अच्छा। लगभग 8 लाख इंडियंस हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके। तो इंडियन ओके सब सर, प्रोडक्ट मिल जाते हैं यहाँ पे। Garvit Yog is asking, is the yoga therapy scope is growing in all over the world? इट क्योंकि इज, इट थेरेपी, इज। या क्योंकि थेरेपी को थेरेपी, जनरली काफी जगह ऐसे मतलब लीगली तरीके से मतलब सही नहीं रहता है, आई एम हर्ड। तो आई मीन व्हाट आर योर व्यूज? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है कि योग में एक जैसे हम पॉजिटिव बोन एंड बेन की बात करते हैं, तो योग की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अ, हम इसमें डायग्नोज नहीं कर सकते। हम्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को देख के डायग्नोज नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल टर्म में क्या होता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या होता है कि आप डायग्नोज कर सकते हो। योगा हम्म। में हम थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी बात क्या होती है कि लोग ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है लोगों को कि जब आप योगा आसना प्रैक्टिस करते हो तो कुछ आपके फ्लक्चुएशन आते हैं। कई बार आपको प्रैक्टिस करते करते बॉडी पेन आएगा और वो सोचते हैं कि ये इंजर्ड हो गई बॉडी, है ना। कई हम्म। बार मतलब वो आउटकम्स होते हैं ऑन द वे ऑफ देयर प्रैक्टिस। तो मैं बोलूंगा कि थेरेपी को आप साइड में लेके चलिए। अगर आपका इंटरेस्ट थेरेपी में है तो आपको साइड बाय साइड में लेके चलिए। मेरे साथ एक दोस्त है, वो मतलब एक्चुअली मेरा जूनियर था यूनिवर्सिटी में, बट वो वियतनाम में अच्छा काम कर रहा है, वो भी शोएब। तो उसने अपना एक्यू प्रेशर में अपना स्ट्रेंथ की। वो वियतनाम में ही है, लेकिन आसना सिखाता है, साथ में जो ओल्ड एज हैं या फिर जो जिनको कोई प्रॉब्लम है वो थेरेपी भी देता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर शेयरिंग एंड यू नो द रिजल्ट, यू कैन कंटिन्यू विथ थेरेपी। यस सर, also continue. या, so you can still take your therapy along with you, but you have to keep one thing as a strength. आप जैसे आसना Okay. बहुत इजीएस्ट वे है एंटर करने के लिए, उसके साथ में आप Hmm. थेरेपी लेके चल सकते हैं। So what about the legalities of that? Because in India, yoga therapy is treated as complementary and alternative therapy. It comes under that. But what about हम्म। in Hong Kong, and what about other countries? आई मीन आई स्टिल टीच। जैसे हुआ क्या था कि जैसे मेरी जब वर्कशॉप हुई थी पहले, तो नॉर्मली Hmm. लोग जो वर्कशॉप लेते हैं वो थीम बेस्ड क्लास लेते हैं। जैसे मेरी एक वर्कशॉप थी शोल्डर ओपनिंग, तो मैंने शोल्डर Okay. ओपनिंग के साथ साथ में मरमा उनको इंट्रोड्यूस किया Okay. कि मरमा के थ्रू हम कैसे शोल्डर को बेटर कर सकते हैं। और उनको फिर इवन Hmm. जैसे हमारी टीचर्स, अगर आप जानते होंगे तो हमारे एक जो पंचकर्मा की जो हेड है अभी, पता है, अलका मैम, Uh, अलका मिश्रा, yes. डॉक्टर अलका मिश्रा। तो उन्होंने हमें मरमा सिखाया हुआ था। तो उन्होंने एक टर्म बताई थी जिसमें जिसको बोलते हैं मस्कुलर एट्रोफी एंड डिस्ट्रॉफी। तो उसमें क्या होता है कि आपका Hmm. मसल, कोई भी बॉडी का एक पार्ट वो सूखने लगता है। तो जैसे अब शोल्डर ओपनिंग की बात आती है, कुछ Hmm. लोगों को फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में जब आप हाथ ऊपर करते हो ऊपर नहीं हो पाता, लेकिन थेरेपी से आप सीधे हाथ को ऊपर कर सकते हो। विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट यू कैन सी द रिजल्ट। तो जब आप रिजल्ट दिखाते हो लोगों को तो फिर लोग बिलीव करते हैं उस चीज पे। तो आपको इंट्रोड्यूस करना है एज अल्टरनेटिव, बट जब रिजल्ट मिल जाएंगे तो वो उस पर बिलीव भी करेंगे। और आपका आपका अगर आप वो स्ट्रेंथ पार्ट है तो आप उसको एज अ प्राइमरी भी लेके चल सकते हो फिर। Okay, sir. Okay. But matlab we can introduce side by side in our classes, but we can't. ऑफिशियली इट्स Yes, वेरी sir. डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट हैव दोस अथॉरिटीज टू डू इट। Exactly, sir. And sir, I guess आपकी ही classmate है प्रियंका राठौर जी. She's asking how can we motivate our clients to come regular in yoga class? This is one of the biggest challenge because uh, uh, you can really be harsh on them or you can pamper them in the class, but it's their choice to come or not.
समटाइम्स पीपल कमिट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी सुबह 7 बजे क्लास है, शाम को पार्टी ज्यादा हो गई, दोस्तों के साथ ज्यादा बैठ लिए, तो सुबह उठने नींद पूरी नहीं हुई, भूल गए क्लास आना, है ना। तो कुछ सारे कमिटमेंट्स होते हैं, एक सेल्फ अवेयरनेस होती है। दूसरी बात क्या होती है कि आप कहीं ना कहीं क्लास में वो सॉफ्ट स्किल्स को यूज करिए कि आपकी क्लास को जो बोलते हैं ना नशा चढ़ जाए, कि वो आपके बगैर रह ना पाए। तो मेरे पास भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास के बगैर रह नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो Okay. आएंगे, करेंगे भी क्लास, और जब नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, ऐसा भी है। तो ये हमारे अंडर में Can नहीं you है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। so can you elaborate on the soft skills वाला part कि ऐसे कौन से soft skills use कर सकते हैं that give the नशा? आई मीन कई बार क्या होता है ना, ये एक सबसे बड़ी चीज होती है कि पर्सनल टच। पर्सनल टच मतलब क्या होता है कि जैसे आप, कोई हमारी क्लास में आ रहा है, अब हांगकांग की बात करूं तो मेरी क्लास में लगभग 20 से लेके 80 लोग भी होते हैं मेरी क्लास में, अप टू हम्म 80 पीपल। अब अगर हम्म 80 लोगों में अगर आपने एक स्टूडेंट का नाम ले लिया एक बार कि ओके, मैंने बोला कि शिवम, यू आर डूइंग गुड, जब आप उनको अप्रिशिएट करते हो तो एक पर्सनल टच हो जाता है ना। आपने बोल दिया ओ यू आर डूइंग गुड टुडे, आई वाज मिसिंग यू दैट डे, यू डिडंट केम टू दैट क्लास, तो आपको एक थोड़ा सा पर्सनल टच उनको देना पड़ता है। एक वो चीज होती है। दूसरा, आप कभी कभी जैसे हैंड्स ऑन की बात करते हैं, हम लोग हैंड्स ऑन सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा कर रहा है, रेगुलर है, आप उनको कॉम्प्लीमेंट करिए। जब आप उनको हम्म कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके अंदर भी वो एक थोड़ा सा इंकरेजमेंट आता है कि हाँ हम थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा हो पा रहा है। ऑल दो ये पूरा माइंड का गेम होता है, हम बोलते हैं कि माइंड में फ्लक्चुएशंस होती है, तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, कई बार लोग आएंगे, कई बार नहीं आएंगे, वो डिफरेंट रीजन है, वो उसको हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। Okay, sir. The next question from Yashashvi from DSVV. Can you suggest name of some good yoga companies where students can initially apply after graduation or masters to get good exposure or education? अगेन आई वुड से यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ बिगर लेवल दैट जो भी बड़ी कंपनी है वो फ्रेशर्स को नहीं लेंगी, Okay. क्योंकि आपने जो तैयारी की है वो अपने इंडिया के हिसाब से की है। आप जो इंडिया में सीखते हो वो बाहर वैसा का वैसा अप्लाई नहीं होता है, आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। आपके रूल्स, जैसे मैंने बोला, देश काल परिस्थिति, ये चीजें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ Hmm. चेंज हो जाता है। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं आपको योगा सुबह उठ के करना चाहिए, यहाँ पे रात के 10 बजे तक योगा होगा, ठीक है। एक एक कंपनी है जो कि 24/7 चल रही है, आप उसमें कभी भी जाओ, किसी भी टाइम में आप पर्सनल ट्रेनर को हायर कर सकते हो वहां पे। तो यहाँ पे जगह के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। अगर हम रिजिड रहेंगे अपने रूल को लेके तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके साथ। तो मैं बोलूंगा फिर भी कि जैसे अगर आपका एम बाहर निकलने का है, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर गुड कंपनी, आप बस निकल जाओ। आप निकल जाओ, जो भी कंपनी में आपको मिल रहा है मौका, बस आपको कुछ बेसिक्स सी चीजें ध्यान रखनी है कि आपका सर्वाइवल हो जाए, आपकी सैलरी इतनी हो कि आपका सर्वाइवल Hmm. उस कंट्री के हिसाब से हो जाना चाहिए। कंपनी वेल रेपुटेटेड एटलीस्ट हो कि वहां पे रेगुलर स्टूडेंट्स आए, और आपको लगता है कि आपका आपको सीखने को कुछ मिलेगा। ऐसी जगह में नहीं जाना है Okay. कि जहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन आपको दे दिया। जैसे मैं बहुत सारी जगह ऐसे जानता हूँ जहाँ पे आपको हायर करेंगे एज अ योगा टीचर, बट आपको जाके वहां पे रिसेप्शन का काम करना पड़ेगा, आपको इवन मैट भी साफ करनी पड़ेगी, ऐसे भी जगह है कुछ, ठीक है। तो आपको अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो बाहर के लिए, तो आप निकल जाओ, बस काम करो, एक्सपीरियंस लो, अच्छा है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो स्विच करो, जब तक Okay. आपको सही Garvita, डायरेक्शन ना मिले। जी। जी sir. Garvita asking, what could be the best place to go directly after bachelor's? The biggest thing is that if you really want to go overseas, visa, Ye- कंपनी, Yes, sir. वीजा 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 Oh, अवेलेबिलिटी। okay. अगर हम वीजा की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनी इसलिए थोड़ा हेजिटेट करती हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन तो है, आपके पास डिग्री तो, लेकिन लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस Hmm. नहीं है, और बिना एक्सपीरियंस के कोई आपको हायर करने में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, क्योंकि कंपनी को भी एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ी सी मतलब आपको सपोर्ट सिस्टम दिखाना पड़ेगा, और अगर आपके पास Hmm. एक्सपीरियंस नहीं है तो वीजा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो Hmm. इसीलिए ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे इंडियंस वियतनाम जाते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मली 3 मंथ्स का वीजा एज अ टूरिस्ट मिल जाता है, और आप वहां Hmm. पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। करंटली जैसा मुझे पता है कि थाईलैंड में वीजा फ्री हो गया है, ठीक है।
आप हम्म, जैसे वियतनाम तो बहुत इजी है, जितना मुझे पता है वियतनाम और थाईलैंड आप कभी भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अ, आपको सच में कहीं दूसरी जगह जाना है, तो उसमें कनेक्शन मैटर करते हैं। अगर आपके कनेक्शंस हैं, जैसे आपको यूएस जाना है, आपको जर्मनी जाना है, यूरोप कहीं जाना है, या फिर आपको कहीं भी और जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो यहाँ पे बिना कनेक्शंस के कोई आपको आपकी वर्थ वहां पे बतानी पड़ेगी कि आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी वो ले लें। तो अपने फिर वही वाली बात है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ इतनी बना लो कि लोग आपको हम्म। बुलाएं। इट डजेंट मैटर कि आपकी Manoj, आपका एक्सपीरियंस कितना है। yeah, Manoj is saying Vietnam is overfilled. That is true, I guess. इट इज देयर आर एवरी आई मीन इतने सारे टीचर्स हो गए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लेने में क्या दिक्कत है? आप ऐसे समझ के जाओ कि मुझे बस जाना है, घूम के आना है, देख के आना है। एक इंटर्नशिप समझ जाओ Hmm. कि मुझे इंटर्नशिप लेनी है और वापस आना है। उसके बाद में वहां से एक आइडिया मिला। फिर दूसरा तरीका क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ग्रेजुएशन में हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है फाइनेंशियल। Hmm. अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप तो एक्सप्लोर कहीं भी कर सकते हो। टूरिस्ट बन के जाइए, बाली चले जाइए। बाली में भी वीजा फ्री है। आप वहां जाके योगा इंडस्ट्री समझिए कि कितना कितना वहां पे बड़ा मार्केट है योगा का। बहुत Hmm. बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो बाली में है। तो वहां भी आप जा Hmm. सकते हो, देखने के लिए जा सकते हो। लेकिन वो ये कि आपको समझना पड़ेगा कि एक टीचर जो वहां पे काम कर रहा है और हम में क्या डिफरेंस है। वो समझने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा पहले, कि हमारे में क्या मिसिंग है। एक बार एक आइडिया लेना जरूरी है, तो उस हिसाब से आप Okay. अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। So regarding the connection part, Asmita Kambos from our, she's also a classmate. She's asking, how can we make connections? Very simple, guys. We all have social media, Okay. right? I mean, as I told you, right, कि जब मुझे निकलना था बाहर तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जिन्होंने मुझे हांगकांग बुलाया, मैं उनसे फेसबुक के थ्रू मिला था। अच्छा. हाँ, और जो मेरी पहली कुछ जॉब लगी थी, जैसे एक जॉब मेरी थी टिब्लिशी। टिब्लिशी करके एक जगह है जॉर्जिया, बहुत ठंडी जगह है, माइनस में टेम्परेचर जाता है Hmm. वहां भी मेरा कनेक्शन यही था कि फेसबुक के थ्रू मैंने चेक किया कि योगा स्टूडियो कहाँ कहाँ कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। आपको ये शाइनेस जो है ना थोड़ा निकालनी पड़ेगी। सबको मैसेज करो, जितना हो सकता है अपने बारे में लोगों को बताओ कि आई एम दिस पर्सन, आई हैव डन दिस दिस दिस, और मैं जॉब के लिए अभी आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। और आप जितना हो सकता है सोशल मीडिया का यूज करिए। एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग फॉर गुड पर्पस, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेंगे। सोशल मीडिया हो Okay. गया। दूसरा, आप गूगल मैप के थ्रू जो योगा स्टूडियो उनके ईमेल निकालिए, उनसे कांटेक्ट करिए। वो दूसरा तरीका जो मैंने किया था। अच्छा. हाँ, तो मतलब आप जैसे प्लेस पर पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करिए, जितने भी योगा स्टूडियोज आ रहे हैं, यू गो टू जितने देयर योगा स्टूडियो हैं, ईमेल एंड अप्लाई. बिल्कुल बिल्कुल आप उनमें से उनके ईमेल कॉपी करिए, पेस्ट करिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी प्रोफाइल बताइए। फिर वो अगर वो आप पे इंटरेस्टेड हैं, इवन आप एक और चीज कर सकते हो कि आप उनको ऑफर कर सकते हो कि वो आपको इनवाइट करें। आपको सैलरी नहीं हम्म. चाहिए, आपको एक्सपीरियंस लेना है। मैं 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप मुझे इनवाइट करिए, मैं आऊंगा वहां पे, काम करूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेइंग इन इंडिया। आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का दैट तो इज उसमें ऑल्सो. फायदा ही है ना। हाँ, तो लाइक हाउ कैन वी सजेस्ट टू द कंपनी, लाइक उसके लिए फिर हमें ट्रैवल एंड अकोमोडेशन वगैरह हम खुद ही अरेंज करें या फिर वो कंपनी दोनों करवाए? दोनों तरीके हो सकते हैं। पहला तो आपको यही कोशिश करनी कि वो प्रोवाइड करें, लेकिन वो प्रोवाइड तभी करेंगे जब उनको आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी स्ट्रेंथ पे बिलीव होगा। जी. तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग करिए, और उस पे अगर वो भरोसा करते हैं तो शायद इवन 50-50 हो जाए तो दिक्कत नहीं है। आपको तो एक्सपोजर ही मिल रहा है ना, कि आप जाने का मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, डेफिनेटली. सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। आप एक और अगर उनको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू कर लो फिर वहां पे। दोनों चीजें हो हम्म. सकती हैं। जी सर, बिल्कुल. एंड सेशन एंड करने से पहले सर, आपके लिए क्वेश्चन कि आपका प्लान क्या जी। है? आप हांगकांग में रहेंगे या फिर डू यू हैव एनी अदर प्लान्स? Personally, for me, I don't have any plans, but I have one fixed plan is to serve the community with what I have. क्योंकि योगा टीचिंग मुझे एक ऐसी फील्ड मिली है जिसमें मैंने अपने आप को मतलब कंप्लीट फील किया हूँ।
पहले मैंने बहुत सारी चीजें की, डिफरेंट एजुकेशन फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में था। उसके बाद में जॉब भी मैंने अलग अलग की, इवन फोटोग्राफी की जॉब की, इवन कंप्यूटर टेक्नीशियन की जॉब की। उसके बाद में पहले एनिमेशन में था, उसके पहले भी बहुत सारे अलग अलग काम किए। बट जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है अभी फिलहाल, तो हम्म, उस सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि नो मैटर व्हाट, हाउ लॉन्ग आई विल बी आउटसाइड और ओवरसीज, आई विल बी कीप टीचिंग योगा नो मैटर वेयर आई okay, sir. Okay, sir. Thank you एम। so much, sir, for being here with us, for giving your valuable input. और मैं ऑडियंस को भी थैंक यू करना चाहूंगा। कॉन्टियोर योगा 60K कम्युनिटी बन चुकी है। थैंक यू ऑल गाइस एंड आर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank you, हियर एंड Shivang, अग्रीइंग टू and दिस। yeah, thank you, Shivang and Shivam for organizing this. I mean, यस सर, you आई guys are फॉरगॉट। really doing amazing job, and I'm happy that you are circulating that ancient wisdom, ancient knowledge, and promoting our own culture to all over the world. Yeah, Yeah, you mind Shivam Raj Maurya? Yeah, thank you very much, guys. जो शिवम राज मौर्य, I guess वो आप सबको पता ही होगा। He operates and manages the Conti Yoga page. उसी का ये पूरा organize करवाया था. I was just the host. And I would also like to give a shout out to Akanksha ma'am if she's still here. वो हमारी पहली guest थी. She was our first guest, and she was also here throughout the session. Hello, Akanksha ma'am. Thank you for joining with us. Okay, so I guess we thank should you. end now. Yeah, और अगर yeah, किसी yeah. को Thank कुछ you so ऑडियंस को much. कुछ एंड में कुछ कहना है, हम लोग फाइनली एंड कर रहे हैं। इफ यू वांट टू से एनीथिंग जस्ट से योर 10-15 seconds फास्ट। थैंक यू गाइस। ओके, मैम इज स्टिल हियर। प्रियंका जी, आपकी प्रियंका जी बोल रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 60K, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, आई गेस वी शुड एंड नाउ। Okay, thank you Thank so you so much much, man. guys for being here. Thank Thank you. you, sir. Thank you.